we shall discuss the new bit, and that bit is algebra of functions, and also we shall study what is meant by the composite of a function and how to calculate the composition of two functions. Now here we shall discuss this. 1 minute. Okay. Actually we have up till we have studied, see this, algebra of function. That means up till we have studied function, domain, codomain, range, types of a function, representation of a functions, basic types of a functions, piecewise defined special functions, logarithmic functions. Now we shall discuss the algebra of function, composite function, and some types of piecewise functions. See this we shall discuss later on. But today's lecture we shall discuss the algebra of a function and the composition of a function. Before studying the algebra of a function and the composition of a function, you have to complete this problem first. See this, yesterday we have seen that the solution of this problem, what is the solution of this first problem we have seen. I think this first problem is incomplete, so I shall solve this first problem again. See this, in within a 2 minutes I shall solve this first problem. Write down the first problem. Log of x minus y divided by 4, which is equals to log of root x plus log of root y. That means we can write log of x minus y divided by 4 is equals to log of root x into root y. If there is addition in between two logs, then we can take a common. That means we can take log of m plus n can be written as log of m into log of n. So left side is a logarithmic term, right side is a logarithmic term having the same base. So we can cancel this by comparing. Now compare this, that is x minus y divided by 4 is equals to root x into root y. Now see this, we have to prove x plus y bracket square. X plus y bracket square is equals to 20xy. This is our aim. So we have to remove this root. Here root नको आहे, root नको आहे म्हणजे स्क्वेअरिंग करा. By squaring, that means x minus y bracket square is equals to 4 चा square 16, and square of root x is x, square of root y is again y. So we can write x square minus 2xy plus y square, which is equals to 16xy. Okay. Now this is, see this on the left side, जे प्रूव्ह करायचं ना त्या प्रूव्ह करण्याच्या स्टेटमेंट मध्ये पहा, लेफ्ट साइड ला x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है. यहाँ पे लेफ्ट साइड को x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे तो माइनस 2xy is the middle term. So we get x minus y bracket square. First of all, remove this minus 2xy and replace plus 2xy. How to remove this minus 2xy and how to replace plus 2xy? See this, that means we have to first add and subtract. You have to first add and subtract on both sides. By the 4xy we have to adding and we have to subtracting both sides by 4xy. Then we will get minus 2xy plus 2xy means 4xy. See this, adding 4xy on both sides. Therefore we can write x square plus 4xy minus 2xy plus y square, which is equals to 16xy plus 4xy. That means x square plus 2xy plus y square, which is equals to 20xy. Now see this expansion of this
This is the expansion of a bracket square. What is that? X plus y bracket square is equals to 20xy and hence proved. This is our required proof. तो इसी तरह से हम ये required proof कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे जो लास्ट प्रॉब्लम है वो भी अभी हमें सॉल्व करना है. What is that last problem? See this. If x is equals to log of bc to the base a, y is equals to log of ca to the base b, and z is equals to log of ab to the base c, then we have to prove that. What we have to prove? 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus y plus 1 upon 1 plus z is equals to 1. Okay, this is our aim, this is our required proof. So, in this case, given that now first of all we can solve this. X is equals to log of bc to the base a. लेकिन अगर फर्स्ट टर्म की तरफ आप ऑब्जर्व करते हैं, जो अपने रिक्वायर्ड प्रूव है, जो आपको प्रूव करना है, उसकी जो फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं उसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है. तो यहाँ पे ओनली एक्स है, तो दोनों साइड को एडिंग 1 कीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. हाँ, आप मत लिखिए, आप खाली कंसंट्रेशन के देख के इधर समझ लीजिए पहले और बाद में लिखना है. लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है, खाली आपको देखना है. 1 मिनट. जो भी ऑनलाइन बच्चे, ओम प्रकाश, गुरु, संकेत, दमकोंडवार, सेवाडे, ओके. तो दोनों साइड को मैं पहले 1 मिनट. हाँ, यहाँ पे ओके. तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड मीन्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग ऑफ बी सी डिवाइड बाई ए. दोनों साइड को 1 ऐड कर दिया. अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो 1 प्लस लॉग ऑफ बी सी है, तो 1 को लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए. यहाँ पे बी सी है, देखो यहाँ पे कौन सी टर्म है, बी सी. अपने को ये रिक्वायर्ड टर्म है, ये चाहिए, ये नहीं है, इसलिए इसको हम लॉग ऑफ ये टू द बेस ए, बिकॉज जो सेकंड लॉग है उसका बेस ये है, इसलिए 1 के लिए हमने क्या कर दिए, लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए. अभी दोनों लॉग का सीरीज, अभी दोनों लॉग का बेस सेम है, तो उसका एडिशन फार्मूला यूज कर सकते हैं. लॉग ऑफ ये, अगर दोनों में एडिशन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे, ये इंटू बी इंटू सी. दिस इज अ 1 प्लस एक्स. अभी इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. अभी रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या होता है, बाय द रेसिप्रोकल now how to take the reciprocal? 1 upon 1 plus x, which is equals to 1 upon log of a b c to the base a. अभी रेसिप्रोकल क्यों ले लिए हमने, ये आपको समझना चाहिए, बिकॉज हमें जो भी प्रूव करना है उसमें फर्स्ट टर्म आप चेक कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो पहले दिया हुआ टर्म x का था, दोनों साइड को ऐड करके 1 प्लस एक्स हो गया. अभी ये 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स चाहिए, तो हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं. दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अभी आपको पता है लॉग का रूल, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कैसा लेते हैं, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए. अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं लॉग का, तो उसका बेस
और उसका फंक्शन इंटरचेंज होता है। तो राइट साइड में लॉग है, उसको हम रेसिप्रोकल है 1/, है तो उसको न्यूमरेटर में लेते वक्त इसको हम ऐसा कर सकते हैं, log ऑफ ये टू द बेस ए बी सी, इंटरचेंज हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 1/1 प्लस एक्स की। अभी देखिए सेकंड टर्म कौन से y है, सेम आपको y की टर्म लेना है और जिस तरह से ये हमने स्टेप सॉल्व करके 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लिए, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं। मैं खाली यहां पे सिमिलरली लिखता हूं, तो 1/1 प्लस वाई की टर्म क्या आती है, देखो log ऑफ b टू द बेस ए बी सी, ये निकालना है आपको, ये सेकंड हो गया। एंड 1/1 प्लस z किसके आधार पर, ये देखो z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी है, तो कैसा निकालना उसको 1/1 प्लस z, तो दोनों साइड को 1 प्लस z, दोनों साइड को 1 ऐड करना है, फिर लॉग एडजस्ट करना है, इसका बेस सी रहना चाहिए, तो बेस सी लेना, 1 की जगह पे log c टू द बेस सी, फिर फॉर्मूला यूज करके 1/z आता है, उसका रेसिप्रोकल लेके 1/z की वैल्यू आती है, वो क्या आती है देखो, log ऑफ c टू द बेस ए बी सी। ये हो गया 3। अभी हमें जो भी प्रूव करना है उसका LHS लीजिए। क्या है LHS, देखो हमें जो भी प्रूव करना है उसका LHS लीजिए। LHS 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस z। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू आती है log ऑफ ए टू द बेस ए बी सी प्लस log ऑफ बी टू द बेस ए बी सी प्लस log ऑफ c टू द बेस ए बी सी, यानी सभी का बेस सेम है। ये देखो ए बी सी, ये तीनों log का बेस सेम है, वो ए बी सी है, तो log में फॉर्मूला यूज कर दीजिए m प्लस n प्लस p है, तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तीनों को एक साथ फॉर्मूला यूज कर दीजिए। दैट मीन्स log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी। अगर log का फंक्शन और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, विच इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, तो ये देखो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, इसके स्टेप्स ज्यादा है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। ये मैंने खाली, ये देखो यहां पे मैंने खाली एक की टर्म x is equals to log bc to the base a. First of all, I considered this term and solve this term by adding 1. Then this replace right side 1 on log a to the base a. Then we get log of a plus a into b into c to the base a. और इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू निकलती है। ये देखो इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू log ऑफ ए टू द बेस ए बी सी। आपको सिमिलर स्टेप करना है और 1/1 प्लस वाई की वैल्यू log बी टू द बेस ए बी सी निकालना है, उसको इक्वेशन 2 देना है। सिमिलरली 1/1 प्लस जेड log सी टी डिवाइड बाई ए बी सी, ये भी आपको करना है। फिर ये 1 2 3 के वैल्यूज इक्वेशन 3 में लिखना है। ये कहां से लिखते हैं, LHS लिया, जो भी आपको प्रूव करना था उसको प्रूव क्या करना था, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था 1, तो LHS लेके RHS प्रूव कर दिए। ओके, इसी तरह से ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो हम अभी ये देखो, ये आपको करना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से स्टेप कीजिए। तो नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट बिट in this chapter, that is algebra of a composition. What is mean by algebra? Algebra means the mathematics, basic mathematics process, that is addition process, multiplication process, division process, inverse process. These are the process in mathematics which are called as a algebra of a mathematics. Means हमें अभी इस चैप्टर में फंक्शन का अलजेब्रा निकालना है, फंक्शन की एडिशन कैसी होती है,
दो फंक्शन के एडिशन, दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और दो फंक्शन का डिवीजन कैसा लेना है यहां पे देखना है. दैट मीन्स द अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस. अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मीन्स how to add two functions, how to subtract two functions, how to multiply two functions, how to take the division of two functions. Also we shall discuss how to take the inverse of two functions, that is later on, but in this algebra section we shall discuss only the addition, multiplication, division. Now see this. See here, let f and g be the functions with the domain a and b. Then the function f plus g, f minus g, f into g, f divided by g are defined on a intersection b as follows. Are defined. आता जे a आणि b दोन सेपरेट आहेत फंक्शन्स. a and b are the two functions with domain. f चा domain a, sorry, f and g are two functions with domain a and b. Means domain of f is a. See this. Domain of f is a. Domain of g is b. Then we can define the addition operation, multiplication operation, division operation, subtraction operation on a intersection b as follows. This is the first definition. How to add a plus b of x is equals to, sorry, f plus g of x is equals to f of x plus g of x. Second definition, f minus g of x, f और g की subtraction in terms of x, which is equals to f of x minus g of x. Similarly, f into g of x is equals to f of x into g of x, and f divided by g of x, which is equals to f of x divided by g of x. So these steps. This is a first. F plus g of x is equals to f of x plus g of x. Second, f minus g of x is equals to f of x minus g of x. Third, f into g of x, which is equals to f of x into g of x. And fourth, f upon g, division देखो यहाँ पे division है, f upon g of x is equals to f of x divided by g of x, where g of x is not equals to 0. This is essential condition, because if g of x is equals to 0, then that will goes to non-defined infinity. So it is essential that g of x is not equals to 0. Okay, now how to solve this we shall discuss. तो यहाँ पे हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इसी प्रॉब्लम के आधार पे अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सी दिस, ये की प्रॉब्लम है, ये देखो, गिवन फंक्शंस आर see this, f of x equals to 3x plus 5, then g of x equals to 6x minus 1, then see this, then we can write f number a, f plus g of x, f plus g of x. According to the definition, how to write here, f plus g of x is equals to f of x plus g of x. So we can write this as f plus g of x means f of x plus g of x. Okay, now put the value of f of x. What is the value of f of x? That is 3x plus 5 plus g of x means what? 6x minus 1. Then we get 3x plus 5 plus 6x minus 1. That is, now you know that we can add or we can subtract, addition or subtraction of variable term, constant term. Therefore this 3x plus 6x can be written as, or we can collect in 3x plus 6x, this is a variable terms, and the constant term 5 plus 1 we can write as a 9x plus 6. This is the value of f
plus g of x. Okay, this is the value of f plus g of x. Now we can consider the second, f minus g. See this, what is the second problem? f minus g of 2. क्या करना है आपको? यहाँ पे f माइनस जी ऑफ 2 निकालना है। तो पहले आपको, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट f माइनस जी फर्स्ट ऑफ x, देन वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 2 in place of x. Now second b, f minus g of x, according to the definition, how to write this? F of x minus g of x. Put this value, f of x means what? That is 3x plus 5 minus g of x means what? 6x minus 1. Now calculate this. 3x plus 5 minus 6x plus 1. That can be written as a minus 3x. See this, minus 3x plus 5 plus 1. See this, plus 5 plus 1 means what? We can write as a 6. This 4 है क्या? 1 minute. Okay, 3x plus 5, 6x minus 1. हाँ, यहाँ पे माइनस है. ओके, यू आर करेक्ट. 5 minus 1, 5 minus 1 यानी कि यहाँ पे 4 आता है. ओके, हाँ, यस, दिस इज अ 5, दिस इज अ minus 1, 5 minus 1 means 4. ओके, नाउ दिस 6x plus 1. हाँ, बरोबर आहे. संकेत निटुरे, व्हेरी गुड. सुजाता सेवाडे, व्हेरी गुड. वैष्णवी दमकोंडवार, व्हेरी गुड. नाउ दिस इज अ f minus g. See this. This is a f minus g of x, but we have to calculate f minus g of 2. क्या कैलकुलेट करना है? देखो हमारे प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे क्या है, f minus g of 2 मीन्स आपको f minus g of 2 निकालना है. तो हमने क्या निकाल दिया? फर्स्ट f माइनस जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दिया है. तो अभी इसी आधार पे हमें फंक्शन में चेंज करना है. यहाँ पे जो वेरिएबल है, फंक्शन का जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पुट अप करना है. तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, देन वी विल गेट देयरफॉर f माइनस जी ऑफ 2 which is equals to minus 3 into 2 plus 6, that is equals to minus 6 plus 6, that is equals to 0. Therefore, this is the value of f minus g of x which is equals to 0. Okay, next we have to calculate the third term. What we have to calculate? f into g of 3. ये देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है? f into g of 3. See, first of all calculate f into g of x according to the definition of the algebra. According to the algebra we can write f of x into g of x. f into g of x means f of x into g of x. तो यहाँ पे हम इसको जो f of x into g of x है, put this value f of x. What is the value of f of x? 3x plus 5 and 6x minus 1. 3x plus 5 into 6x minus 1. Now calculate this. 3 into 6 means 18x square. 3 into minus 1 means minus 3x. 5 into 6 means minus 30x plus 30x, and 5 into 1 means minus 5. ये देखो बराबर है क्या? फिर से एक बार देख लीजिए, ये बराबर टर्म आना चाहिए. 3x into 6x means 18x square. 3x into minus 1 means minus 3x. 5 into 6 means 30x.
and 5 into minus 1 means 5. Then this can be written as a 18x square plus 27x minus 5. This is a f into g of x. But you have to calculate, what we have to calculate, see this in the given statements here, f into g of 3 निकालना है, तो put x is equals to 3. यानी कि f इंटू जी, यहाँ पे जो f इंटू जी है इसका हमें क्या वैल्यू निकालना है, f इंटू जी ऑफ x मीन्स 3 which is equals to 18 into 3 square plus 27 into 3 minus 5 means 18 into 9 plus 27 into 3 minus 5. Similarly, we can calculate 72. 72. 9 into 8 means 72. 9 1 the 9 and 7 means 16 plus 81 minus 5. आप देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए क्या आता है फिर. 3 4 2 minus 5, that is f into g of 3 which is equals to 238. ये देखो, ये बराबर आती है क्या, देखो नहीं तो आप फिर से एक बार कैलकुलेट कीजिए. बराबर है क्या सुजाता शेवाड़े? ओके, सुजाता शेवाड़े ने काढलेले आंसर, वेरी गुड. नाउ सी दिस नेक्स्ट we have to calculate, see what we have to calculate, the last f upon g of x and its domain. Okay, f upon g of x calculate करना है, तो क्या निकाल सकते हैं, see here. Now how to calculate this? 4 f upon g of x is equals to, we can write according to the definition, f of x divided by g of x. Put the value of f of x. What is the value of f of x? You know that the value of f of x is 3x plus 5, g of x is 6x minus 1. (6x minus 1). अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते. दिस इज द आंसर, दैट इज f अपॉन g इंटू x. अगर आपको यहाँ पे ये पूछा होता है कि f ऑफ, कैलकुलेट दिस f ऑफ 0, देन आल्सो नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं. पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन f अपॉन g ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 3 into 0 plus 5 divided by 6 into 0 minus 1, that is equals to 5 divided by minus 1, that is equals to minus 5. This is the value of f upon g of 0. ये देखो, ये वैल्यू है, नहीं है, ये हमें पूछा नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा. आपको समझने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपके लिए एडिशन में कर दिया है. अब इसका डोमेन निकालने का है, तो डोमेन बोले तो x की कौन सी वैल्यू हम इस फंक्शन के लिए ले सकते हैं. सी दिस, हम यहां से लेते हैं. इसका डोमेन क्या होता है, देखो 9x प्लस 4, यानी x की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं. रियल नंबर की कौन सी भी वैल्यू आने दो, ये नॉन डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता. तो वी कैन टेक डोमेन इज इक्वल्स टू आर. यहां पे फर्स्ट ये जो है ना, ये का डोमेन क्या होता है, आर होता है. अभी देखो बी का डोमेन, बी की टर्म कौन से है, ये देखो बी बोले तो -3x प्लस 6 है. बी की टर्म कौन थे, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6. डोमेन बोले तो which types of values we can take for the real answers. तो x की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन we can write any term. So इस डोमेन ऑफ दिस टर्म इज
domain is equals to r. r means you can write any term of this in place of x. अभी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये यहां पे f of x इज इक्वल्स टू f इंटू जी ऑफ एक्स कौन सा है, 18x स्क्वायर, f इंटू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 5. तो इसमें हम x की जगह पे कौन सी भी वैल्यू आप ले, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x फॉर दिस फंक्शन बिकॉज फंक्शन डज नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी. इसके लिए इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, इन्फिनिटी आने की कोई मतलब ही नहीं है. यू कैन टेक एनी फंक्शन आर दैट इज एक्स डोमेन इज इक्वल्स टू आर. ओके, अभी लास्ट जो है देखो, यहां पे जो f अपॉन जी है, कौन सी टर्म है देखो, f अपॉन जी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 6x माइनस 1. अभी कंडीशन कौन सी है, g ऑफ x विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होते हैं इसमें. तो यहां पे आपको अच्छी तरह से डोमेन निकालने को आना चाहिए. g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 1. वी कांट टेक डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है और वो मीनिंगलेस होता है. इसलिए वी कैन राइट डोमेन, यहां पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कैसा लेना है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 मीन्स g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0. 0 नहीं चाहिए, मीन्स दैट इज डिनोमिनेटर मीन्स 6x माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. Therefore we can write as this can be written as, इसको हम कैसा लिख सकते हैं देखो, 6x which is not equals to माइनस 1 चा राइट साइड ला गया प्लस 1 होतो. सो दिस इज इक्वल्स टू x इज नॉट इक्वल्स टू 1/6. म्हणजे x की वैल्यू यहां पे यू कांट टेक x इज इक्वल्स टू 1/6. सो डोमेन, आप डोमेन कौन सा ही ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, r, बट वी कैन टेक 1/6. r you take a domain value of any value of x other than 1/6. so इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस सेट ऑफ 1/6. इसी तरह से इसको निकालना है. अभी हम कंपोजिट फंक्शन की तरफ नहीं जाते, यहां पे रुकते हैं और इसी तरह के होमवर्क के लिए हम तुम्हें प्रॉब्लम्स देते हैं तो आपको कैलकुलेट करना है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस निकालना है. तो हाउ टू कैलकुलेट, सी दिस अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, राइट डाउन होमवर्क. आप होमवर्क भी लिख लीजिए. और जो भी मैंने स्टार्टिंग से 2 प्रॉब्लम ले लिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन लॉग, सेकंड प्रॉब्लम ऑन लॉग, थर्ड प्रॉब्लम, और मैं होमवर्क के लिए 2 प्रॉब्लम दे रहा हूं. ये दोनों प्रॉब्लम और पहले का होमवर्क अच्छी तरह से मुझे असाइनमेंट बना के भेजना है. ओके, नाउ सी दिस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 11, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 16x माइनस 10. then find ये what we have to find, f plus g of 4 b f minus g of 0 c f into g of 2 d f into f divided by g of 6. okay, and its domain. इसके डोमेन भी आपको निकालना है. डोमेन खाली लास्ट का चेंज आ सकता है, बाकी के सभी डोमेन सेम आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका सेकंड प्रॉब्लम आप क्या, थर्ड प्रॉब्लम, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
g of x is equals to 3x minus 1, okay, and h of x, यहां पे हम थर्ड फंक्शन भी लेते हैं, h of x is equals to x plus 4. Then you have to calculate number 1 first, f into g of x, number second, f into h of 4, c f minus h of 2, d f divided by g of 0, e h divided by g, h divided by g of 1 f. See this, we can write g divided by g into h of 16 g, we can write, okay, f plus g plus h of 10. ओके, इतने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। मैं ये आपका होमवर्क कल तक चेक करूंगा। अभी जो कंपोजिट फंक्शन रह गया है वो थोड़ा अलग बीट है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो कंपोजिट हम नहीं यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे खाली अलजेब्रा कैसा निकालना है ये कैलकुलेट करते हैं। और हर एक का सीरीज, हर एक का आपको डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन, यानी कि आपको हर एक का डोमेन निकालना है। जहां पे डिवीजन होता है h अपॉन जी, f अपॉन जी, जहां पे डिवीजन होता है वहीं पे डोमेन आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, आपको क्या लेना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ओके। और ये फिर भी एक देता हूं मैं, g हो गया, h हो गया, अभी i का भी ले लो, g डिवाइड बाई h ऑफ 1, g डिवाइड बाई h ऑफ 1, ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलजेब्रा आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। अभी ये सभी स्टार्टिंग से लेकर सभी प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से डबल होमवर्क करके फिर राइटिंग करके भेजना है। तो ओके, संकेत निटूरे, राइट, सभी अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। गुड बाय, नमस्कार।